हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो जियोग्राफी क्लास 7 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर लॉन्ग वेकेशन when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his school was dug up. उसने देखा कि जो प्लेग्राउंड था उसके नेक्स्ट वाला जो ग्राउंड था वो खोदा जा रहा था। पीपल सेड दैट ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर। सो तैयारी हो रही थी कि वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाएगी। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, means he was emotional to see all this when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. He was realizing that natural view will gone forever. Okay, he shared his feeling with his classmates. He was very sad, that's why he shared his feeling. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. Principal ने कहा कि हमारा वातावरण किस तरह से बदल रहा है। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" Environment क्या है? रवि ने पूछा। So important thing for you is you have to remember this definition. Whatever you see in your surroundings, said the teacher. Means teacher was trying to tell him the definition of environment, that whatever you see in your environment is in your surrounding is environment. Whatever thing, suppose you are watching now table, chairs, open ground, road, whatever you see is environment. Okay, so this is important to you to learn this definition. Next is Ravi thought aloud. That means the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. रवि ने सोचा कि जो चीज़ हम देख रहे हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। टीचर ने कहा यस, बट वेट, लेकिन वेट करो, रुको। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, that few things are natural and few are man-made. That's why teacher said wait. Some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people like us, for example roads, cars, clothes, books. These are the things are being. So you can classify everything into different classes. One is natural and another is human made. Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human being. अब आप क्या करते हो? दो छात्र मिलकर ऐसा कार्य कर सकते हो कि आप चीज़ों को वर्गीकृत करो, उनको डिवाइड करो, जो चीज़ें नेचुरल हैं और जो ह्यूमन मेड हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे, है ना, जैसे आप लोग एक्साइटेड होते हो कि हमें कुछ नया करने को मिला है। व्हाई इज आवर सराउंडिंग चेंजिंग? वो सोच रहे थे कि हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। आस्क इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सब हमारी ज़रूरतों की वजह से है ना। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. What is increasing? Our demands. Our demands are increasing day by day. We are therefore modifying at times even destroying our natural surrounding. The teacher replied, how we can destroy our environment? Can you discuss? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जब बच्चा स्कूल जा रहा था उसने देखा कि खेल के मैदान के सामने वाले मैदान को वहाँ पे पेड़ वगैरह काट के, वहाँ की पार्क को हटा के वहाँ पे फ्लैट बनाने की तैयारी हो रही है। तो हम नेचुरल व्यू को ख़त्म कर रहे हैं। इन द सेम वे वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन गेट मॉडर्न फैसिलिटीज़। ओके, आगे जाने से पहले हम एक अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया है, ये बॉक्स हमेशा पढ़ा करो और जब भी आप पढ़ते हो तो इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको एक बार लिख के देखा करो। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, हमारी लाइफ का बेसिक सपोर्ट सिस्टम है।
Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इससे हमें हर चीज़ मिलती है. हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, वाटर मिलता है, फूड मिलता है और हमें ज़मीन मिलती है जिस पे हम रहते हैं. हाउ डू ह्यूमन being modify this natural environment? Can you tell me now that how we are modifying our environment? The car fumes pollute the air. Okay, in this way, if we are using our cars, that fumes excreted by the car will pollute our air. Water is collected in ports, food is served in vessels and land used to build factories. Okay, इस तरह से जो जो चीज़ें हमें चाहिए, हमें बर्तन चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें सब चीज़ें चाहिए, तो हम फैक्ट्री लगाते हैं, उसके लिए हम अपनी लैंड को ख़राब कर रहे हैं. ह्यूमन बीइंग मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स. जो हम कंटेनर, हर चीज़ में हमें कंटेनर चाहिए, है ना. हमें जैसे हम फ्लावर पॉट रखते हैं घर में, हमें एक चीज़, एक बैग चाहिए, हमें कुछ सामान रखना है, हमें इधर उधर जाना है, उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए. दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. सो इज़ इट क्लियर टू एवरीवन दैट हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बदल रहे हैं. नाउ कम टू द कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. सो हियर आर 3 components of environment, that is, one is natural, which nature provides us, second is human made and third one is human. Okay, natural environment include water, that is hydrosphere, second is atmosphere which include air, third is land, that is lithosphere, and fourth one, that is most important, which is biosphere. It include living organism, whether it is residing on the earth or water or air, wherever it is, but biosphere contain living organism. So now come to the point, human made. Human made include buildings, bridge, road, industries, everything which is made by human, that is human made environmental component. Third is human. Human itself is a component of environment. First is industry, individual, next is family, then community, religion, political situations, economics and educational. Okay, so these are the component of human environment. Now we will discuss about biotic and abiotic component. Biotic component include plant and animal. All everything which is living, it will be under the biotic category. Abiotic, which is non-living, that is like land, what we can say, air. Okay, abiotic component. From the above conservation you understand above conversation जो हुई है, you understand that people, place, things and nature that surround any or living organism is environment. Now it is clear to you that what is environment? Everything which surrounds you. Okay, it is a combination of natural and human made phenomenon, while the natural environment refer to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Now you can say that natural environment can be biotic or abiotic. मतलब जो जीवित हैं वो भी होता है नेचुरल में, और एबायोटिक जो जीवित नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स भी एबायोटिक एनवायरनमेंट में आती हैं. ठीक है. नाउ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? जो उसकी एक्टिविटी होती है या उसकी कोई चीज़ें होती हैं उसकी बनाई हुई, या फिर इंटरेक्शंस है जो ह्यूमन एंड बीइंग के कई सारे लोगों के बीच में, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट को दिखाता है. नाउ एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा स्पेशल पढ़ लो. एनवायरनमेंट इज अ फ्रेंच वर्ड. Getting my point? It can be asked in any competitive exams that from where this environment word is taken. Then you can say that French word, it is a French word, environner. Okay, now you can write it like double N, or here is single N, meaning neighborhood. Environment means neighborhood. So we will discuss now natural environment. Natural environment is everything which is natural. Land, water, air, plant, animal comprises the natural environment. Everything, because this land, this water, this air, this plant, these are not made by animals. So
these everything, these all these are natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere from your previous classes. Also we discussed in this chapter in starting that what is lithosphere, what is hydrosphere, jal mandal, vayu mandal or sthal mandal. These are the Hindi names of these words. Let us learn some more facts about these domains. Lithosphere, what is lithosphere? Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. जहाँ पे भी आप टच करोगे, जहाँ पे भी आपको सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर नजर आएगी, वो सब लिथोस्फीयर के अंडर आता है. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ द सॉइल. Okay, if you are asked in 2 marks that what is lithosphere, you can write the definition and you can also tell that what are the component. Like you can write it is made up of rocks, it is made up of minerals and also covered with a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys. हमारी जो अर्थ होती है वो बिल्कुल समतल तो नहीं है बिल्कुल, है ना. सो यू कैन राइट दैट its surface is irregular such as mountains, plateaus, plains and valleys. Landforms are formed over the continents and also on the ocean floors. लैंडफॉर्म जो होती हैं वो हमारे कॉन्टिनेंट्स पे भी बनी होती हैं और ओशन फॉर्म जो होता है जैसे हमारा समुद्र होता है उसमें भी कहीं ना कहीं तो मिट्टी आती है लास्ट में. सो lithosphere is the domain that provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. तो हमारे lithosphere के uses भी आप लिख सकते हो, है ना. अगर क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है वो ज़्यादा मार्क्स का है तो आप उसके यूजेस के फॉर्म में भी लिख सकते हो. दैट इट प्रोवाइड्स, लिथोस्फीयर प्रोवाइड एस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लैंड फॉर एग्रीकल्चर और फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. हमारे पौधों को कहाँ से मिनरल मिलता है? मिट्टी से ही मिलता है सब कुछ, है ना. सो domains of environment we will discuss here. That this part is biosphere. Everything is included in this. Hydrosphere is also there, air is, I mean atmosphere is also there, lithosphere is also there. Everything which have living organism is biosphere. Is it clear to everyone? Now look at your surrounding. Make a list of uses that the land in your neighborhood is being put to. आपने वो सारी सूची बनानी है जिसमें पड़ोस में आपके जो पड़ोसी होते हैं वो किस किस तरह से जमीन का प्रयोग कर रहे हैं. Where does the water you use in your home, school come from? जो आप स्कूल में और घर में पानी यूज करते हो वो कहाँ से आता है? Make a list different uses of water in your daily life. आप अपनी डेली लाइफ में किस किस इस्तेमाल करते हो. हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर? क्या आपने किसी को पानी वेस्ट करते हुए देखा है और क्यों वेस्ट करते हैं वो ये भी बताना है आपने और कैसे वेस्ट करते हैं. ठीक है. द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे भी आ जाए, हाइड्रो जहाँ पे भी आ जाए तो आपको समझना है इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. It comprises various sources of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for all living organism. You know, water is very essential. Everything, every activity depends on water. So water is present in rivers, lakes, seas, ocean, and it is very essential. So you can write the definition of hydrosphere. Also you can write the uses of hydrosphere. Atmosphere. It is the thin layer of air that surrounds the earth. Okay, this one is definition of hydrosphere. Now gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. Have you ever heard that atmosphere have any gravitational force have any role in atmosphere? Now you have to keep it in mind that gravitational force is very important because it hold the atmosphere around it. इट प्रोटेक्ट अस. किस तरह से ये हमें प्रोटेक्ट करता है? हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. जो हमारे अर्थ है वो किस तरह से सेफ रहती है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है जो हमारे सूर्य से जो गर्मी आती है ना उससे बचाता है ये हमें. इट कंटेन ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर.
So you can now tell in any question, or you must have to remember it, that our atmosphere is a composition of gases, composition of dust, composition of water vapor. Okay, every time you can observe that water vapor are always there. Change in the atmosphere produce changes in the weather and climate. जब भी हमारा एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो हमारा वहाँ का कहीं का भी वेदर और क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. हमने पहले भी डिस्कस किया बायोस्फीयर में क्या आता है. सभी लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल है, ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. ये एक बहुत ही नैरो रेंज है जहाँ पे एक्चुअली ये वाइड रेंज कह सकते हो आप, नैरो नहीं वाइड रेंज है वो, क्योंकि हर जगह पे जीव जंतु होते हैं तो हमारे उसको बायोस्फीयर को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन बुक में नैरो रेंज लिखा हुआ है तो आपको नैरो जोन ही लिखना है. इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. पहले आप इसे इस तरह से समझेंगे कि इकोसिस्टम जो होता है ना, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं एनवायरनमेंट उन जिसमें वो रहता है उनके साथ इंटरेक्शंस, ये सभी लिंक्ड होते हैं. किस तरह से? एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, ये इकोसिस्टम है. तो ये चीज़ें 2-3 इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने. इकोसिस्टम को जब भी डिफाइन करोगे, ये इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ और एनवायरनमेंट के साथ. ये ट्रांसफर है किसका? एनर्जी और मटेरियल का. नाउ गेटिंग माय पॉइंट, यू कैन डिफाइन इकोसिस्टम इन दिस वे, लाइक इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. ठीक है, क्लियर है. Now we will discuss what is ecosystem. At an NCC camp the Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminded me of my home in Kerala." ठीक है, वो जैसी जो है वो एनसीसी कैंप में कहती है कि मतलब आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है. ठीक है, उसको क्या याद आ गया? उसको अपना घर याद आ गया. वहाँ पे केरल में बहुत बारिश होती है और खेतों में और इस तरह से. तो वो अपने दोस्तों को कहती है, "You should come and see how it pours over the lush green field and coconut plantations." जो उनके नारियल के बागान होते हैं वहाँ पर कितनी तेज़ बारिश होती है. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, "वी गेट नो रेन्स." हमारे यहाँ कोई बारिश नहीं होती. जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में. "वी सी ओनली कीकर एंड सैंड." हमें वहाँ पे कीकर दिखती हैं और वहाँ पे रेत दिखता है. "As the eyes can see, but you can find camel," said रवि. रवि को कुछ अच्छी भी चीज़ लगी वहाँ पे. रवि ने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे ऊँट भी मिल जाएंगे. ओके, स्क्रैच और ब्रिंग फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्लेस लाइक स्टूडेंट्स इन द स्टोरी. कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण स्थल का फोटो चित्र कुछ भी लगा सकते हो. ठीक है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी. नाउ हीरा सेज, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards, and many insects too." Ravi wondered, why do the animal, the vegetation, and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? "Oh yes, very much so," the teacher replied. तो बच्चे ऐसे पूछते हैं कि क्या मतलब हर जगह के लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, उनका वेजिटेशन अलग होता है, हर जगह अलग अलग होता है, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? मतलब किसका रिलेशन पूछा उसने? कि जीव जंतु और वनस्पति का कुछ आपस में रिलेशन होता है. उससे पहले याद कर लो, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. जून में 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है जून में, क्योंकि एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, हमें जीना है. जीने से जून याद रखना. हमारा जो एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है. तो जीना 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है. ये क्लियर हो गया. ऑल प्लांट्स
and animals, human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं और जो उनका सराउंडिंग है उस पर भी डिपेंड करते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. हमने इकोसिस्टम की यही डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन living organism and surrounding and exchange of energy and matter with the surrounding and the interaction of living organism with their physical and chemical environment. They could be an ecosystem of a large grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond. So आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो ये बताएंगे कि इकोसिस्टम जो होता है वो एक छोटा सा पोंड भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे ही अपने शहर को बताएंगे कि इकोसिस्टम है. माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन, कुछ भी इकोसिस्टम हो सकता है. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? So you have to tell this answer in comment box. Now we will discuss about the barter system. Barter system is a trade. It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. जैसे आपने अपने दोस्त को कुछ हेल्प की तो बदले में उसने आपको पढ़ाया, या आपने उसे पढ़ाया अगर उसने आपकी हेल्प की, मतलब काम के बदले में पैसा नहीं देना है, दूसरे का काम ही करना है. Now human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट को और इसको बदल देता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग. जैसे आप क्लास में बैठते हो, बहुत सारी चीज़ें आपने बदली होंगी. सो अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. सो हैव यू एवर सीन दैट अर्ली पीपल नेवर यूज्ड AC, नेवर यूज्ड कार्स टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर. सो the environment was very adaptive, very natural. Everything was very natural. Nowadays we changed environment because our needs are changing. They led a simple life and fulfill their requirement from the nature around them. वो लोग क्या करते थे, अपने नेचर से ही अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे. With time needs grow and become more varied. Human learn new ways to use and change environment. इंसान ने जो जो चीज़ें सीखी हैं उसने उसका गलत इस्तेमाल करके environment को ही बदल दिया है. They learn to grow crops, domesticate animal and lead a settled life. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लीड करते हैं एक सेटल्ड लाइफ को. उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को घर में पालना शुरू कर दिया. द व्हील वॉज इन्वेंटेड. Surplus food was produced. Barter system emerged, started and commerce developed. ये सारी चीज़ें हुई. ठीक है, हमारे व्यापार बढ़ गए, हमारे वस्तु विनिमय पद्धति जो बार्टर सिस्टम है वो डेवलप हो गया और पहिए का आविष्कार होने से अन्न उपजाया गया और व्यापार आरंभ हो गया, वाणिज्यिक हो गया हमारा सब कुछ, पैसे से का लेन देन बढ़ गया. विद द टाइम नीड ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड. कहाँ पढ़ रहे थे हम? द व्हील. इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रीज बन गई, प्रोडक्शन बढ़ गया. ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर. हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तेज हो गया. और प्लीज एक सेकेंड बच्चों, वेट. थॉट Why you love eating juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? आपने कभी सोचा है कि आप गर्मी में रसीला तरबूज खाते हो और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों खाते हो, है ना? ऐसे सोचते हो ना कभी कभी मन में. ए परफेक्ट बैलेंस. हमारे कुदरत ने हमें एक बैलेंस देने के लिए सब किया है. ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन द हार्मोनियस वे. इंसान को अपने नेचर को उसी तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए कि उसमें समरसता, हार्मोनी बनी रहे.
Noori, a girl from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. एक में वो अपने स्थान की हरियाली के बारे में बात करती है. Seeing Ravi is upset at having lost his playground. जब वो उसे देखती है कि वो रवि बच्चा है वो अपने प्लेग्राउंड को ख़त्म होते हुए देख रहा है. Noori invited him to visit her home state ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन. नूरी कहती है कि आप हमारे घर छुट्टियों में आना जब वेकेशन होंगी. रवीज टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ ए लैंडस्केप हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज. अब टीचर क्या कहते हैं कि भाई जब भी आप जहाँ घूमने जाओ वहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह छुट्टियों में जाओगे वहाँ के भूदृश्य जो भी हैं वो घरों के लोगों के कार्यों के सब चित्र बनाकर लगाओ ताकि बच्चों को वो याद रहे. टॉक टू सम एल्डर पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन about trees in his her neighborhood when he was your age. आपको अपने बड़ करने या पड़ोस में भी हो घर में भी हो किसी से कि आप जब वो आपकी एज में थे तो वहाँ कैसे पेड़ पौधे थे. द इंडोर गेम्स दे ही और शी प्लेड, उसके बाद गेम वो खेलते थे. हिज और हर फेवरेट फ्रूट एट योर एज, जो भी बुजुर्ग हैं उनका फेवरेट फ्रूट क्या था. हाउ डिड दे मेक देम सेल्स कम्फर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स, वो अपने आप को शांत कैसे करते थे गर्मी में और सर्दी में. डिस्प्ले योर आंसर ऑन ए वॉल बुलेटिन बोर्ड, आप अपने आंसर को बुलेटिन बोर्ड में लिख सकते हो. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. और जहाँ कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल नहीं हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. कि आप पूरे इंग्लिश में चाहते हो या बीच में मैंने 2 लैंग्वेज को यूज़ किया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो. ओके, थैंक यू.